A very good morning to all my dear students. In our last class, we have started and completed some part of income method. We have started with the income method and we have discussed the theoretical portion. And after that, we have tried to solve out some of the numericals also. Now, today we will just take a recall and revision of this practical portion, and then after we will be discussing the precautions of calculating national income from income method. There can be a question in your examination of 6 marks that explain the precautions that you need to keep in mind while calculating national income from using the income method. So today we will be discussing some theoretical points also. Before that, just have a look. You have to open your books, those who are having the books, and those who are not having the books, just make this chart in your book, register. You have to make this flow chart in your register. It will be quite helpful for all of you. Components of NDPFC. Why NDPFC is written over here? Because whenever we are solving the question from income method, we are getting the answer in the aggregate of domestic income. So they have written components of NDPFC. Component number 1 is COE, compensation of employees. You have to write under it, under compensation of employees, you have to write its another name, which is emoluments of employees. I am writing the spelling for you because in case of many practical questions, you may get it like emoluments of employees. यानी कि ये भी वही रिवॉर्ड है जो एम्प्लॉइज ने रिसीव किया अगेंस्ट वर्किंग फॉर अ बॉस. तो सीओई इज ऑल्सो नोन एज एमोलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज. अगर आपको सीओई नहीं दिया हुआ तो आप एमोलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज भी ढूंढ सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन है. दैट मीन्स इट इज द कंपनसेशन of employees. Then after its three parts are already clear to all of you. You all know that COE includes three basic things, right? We have solved the numericals also. Wages and salaries in cash, in kind, and employers contribution in social security scheme. Then have a look. Operating surplus, part number 2. Operating surplus, as I have explained you earlier also, it is known as income from property and entrepreneurship. Income from property and entrepreneurship is another name of operating surplus. बाय चांस क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं देता है तो वो आपको दे सकता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस ही है. अब इस ऑपरेटिंग सरप्लस का डिवाइडेशन इन्होंने आपके लिए कर दिया है जो भी आपको ऑलरेडी पता है. रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट इंक्लूड्स दीज थ्री थिंग्स. प्रॉफिट के अंदर ये तीन चीजें जरूर आएगी. क्या क्या? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग. जब हमने एग्जांपल्स किए तो आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट नहीं गिवन होगा, आपको खुद इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इसके बाद में थर्ड कंपोनेंट मिक्स्ड इनकम, यू ऑलरेडी नो. हम इन सबको सम अप करेंगे. बेसिकली हमें सम अप ये तीन ही चीजें करनी है. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. तो आप पहले वर्किंग नोट में ये तीनों कैलकुलेट कर लीजिए और गिवन है तो क्वेश्चन में पहले ही लिख दीजिए गिवन, और फिर जो गिवन है वो लिख दो, और फिर ये अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन कर लो, और फिर एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लगा के आप जो भी एग्रीगेट आपसे निकलवाना चाहते हैं वो एग्रीगेट यू कैन फाइंड आउट. यस प्रद्युमन, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. Yes, beta, I have given you the option of unmuting. मैम कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जो कंपनीज को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को देना पड़ता है अपने प्रॉफिट पे. ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है. जितना भी टैक्स बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट्स पे गवर्नमेंट को देगा उस टैक्स को हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं. इज इट ओके? इसको आप रीड कर सकते हैं यहाँ से भी. हैव अ लुक. It is a direct tax paid by an enterprise to the government on total profits earned by it. It is also known as business tax or profit tax. चलिए ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हमारा ये जो पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है. आप देख रहे हैं 6 प्रिकॉशंस आपके लिए गिवन है. अगर नेशनल इनकम में से न्यूमेरिकल नहीं आता तो ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है.
तीनों मेथड्स में आपको प्रिकॉशंस मिलेंगे, तो वो आपको बोल सकते हैं प्रिकॉशंस एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत सिंपल प्रिकॉशंस है, आपको ऑलरेडी पता है। प्रिकॉशन नंबर 1 ये है कि अगर आप नेशनल इनकम पे जा रहे हैं तो किसी भी तरीके की ट्रांसफर इनकम को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप अर्निंग हुई है या कोई डोनेशंस रिसीव हुआ है किसी भी तरीके का, किसी ओल्ड एज पेंशन रिसीव किया ओल्ड एज पर्सन ने, तो ये सारी चीजें कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी रिसिप्ट्स है ये किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इनसे इकोनॉमी में कोई डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, इसलिए हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। ये आपका इनकम मेथड का फर्स्ट प्रिकॉशन है। यानी क्वेश्चन ने अगर आपको ओल्ड एज पेंशन दे दिया तो आपको उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है। बस न्यूमेरिकल में तो ओल्ड एज पेंशन ही मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। आगे, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स सेल करके पैसा अर्न कर रहे हो, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स इस साल हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने उसको प्रोड्यूस नहीं किया। जिस ईयर में प्रोडक्शन हुआ था उस ईयर में इसकी वैल्यू को इंक्लूड किया गया था, तो अभी हमें इसको रिकाउंट करने की जरूरत नहीं है। बट if any person has made efforts to sell out the second hand good and received brokerage or commission in return, then his brokerage or commission will be included. एक एग्जांपल के साथ समझिए। सपोज मेरे पास एक कार है, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग अ कार, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे अपनी कार को सेल आउट करना है। मेरी कार है यानी कि यूज्ड है, डेफिनेटली मैं उसको यूज कर रही हूँ। अब मुझे इस कार को सेल आउट करना है। मैंने इसको सेल आउट करने के लिए किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया है, क्योंकि मुझसे खुद से सेल नहीं हो रही। जिसको अपॉइंट किया ही विल बी ट्रीटेड एज ब्रोकर। अब देखिए, मेरी कार सेल हो गई ₹30,000 में, पुरानी कार थी काफी, 30,000 में सेल हो गई। और ब्रोकर ने मुझे कहा कि आप तो ऐसा कीजिए, मुझे 5% का कमीशन दे दीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी मैं नहीं होता तो नहीं सेल होती। तो मैंने उसको 1500 रुपीज दे दिए। अब ये आपको बोल रहे हैं कि ये जो कार सेल आउट करके आपको पैसा मिला है, ये आपकी इनकम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये कार इस साल प्रोड्यूस नहीं हुई है, तो आप इसको एज अ वैल्यू एडिशन या एज अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं मान सकते। बट ये जो ब्रोकर ने 1500 रुपीज रिसीव किए हैं, ये बिल्कुल उसकी इनकम है, क्योंकि उसने आपको एक सर्विस दी है, उसने अपनी सर्विसेज आपको दी है, और उस सर्विस की वजह से आपका काम हुआ। तो ब्रोकरेज या कमीशन तो इंक्लूड किया जाता है, बट सेकेंड हैंड गुड्स की सेल से होने वाली इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। अच्छे से रीड करते हैं इसको, हैव अ लुक एवरीवन। Income from sale of second hand goods will not be included in national income as their original sale has already been counted. जिस दिन उसको actually sell किया था उस दिन हमने count कर लिया था। Now if they are included again, it would lead to double counting. अगर वापस include करेंगे तो double counting हो जाएगी। However, any brokerage or commission received by brokers or commission agents on sale of such goods will be included as it is an income received for rendering productive service. I hope it is clear to all of you. In case anyone is having any doubt, you can ask me. आगे देखिए, third, again it is very important. Income from sale of shares, bonds and debentures will not be included. अगर कोई भी शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड कंपनी ने सेल किया है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब कंपनी ने हमें शेयर्स दिए तो इकोनॉमी में इसके बदले में कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, सिंपल मनी का मूवमेंट हुआ। मेरे पास से निकल के पैसा किसके पास चला गया? कंपनी के पास चला गया। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन थोड़ी हो गया पैसा जाने से। प्रोडक्शन कब होगा? जब कंपनी उस मनी को फर्दर इन्वेस्ट करेगी। तो जब कंपनी इन्वेस्ट करेगी, कंपनी उससे प्लांट एंड मशीनरी लाएगी, तब हम उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब तक कंपनी ने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया तब तक हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। बट अगेन, अगर शेयर्स को सेल आउट करने के लिए किसी ने ब्रोकरेज रिसीव किया तो उसको बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। पॉइंट
डीप है, पॉइंट का मीनिंग डीप है, अच्छे से समझना, लॉजिक नहीं समझ में आया तो रटने का कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर इन द वाइवा कैन ऑल्सो आस्क यू दिस पॉइंट अलोंग विद द लॉजिक। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों नहीं इंक्लूड किया। मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए पॉइंट। मैंने आपको थर्ड पॉइंट में ये बताया कि इन केस किसी कंपनी ने अपने शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, जो कंपनी की सिक्योरिटीज होती है, उनको सेल आउट किया, तो कंपनी ने अगर किसी शेयर को सेल किया और आपने उसके शेयर्स परचेज कर लिए, आपके पास से जो पैसा कंपनी के पास गया उसको कंपनी अपनी इनकम के फॉर्म में ट्रीट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अभी कंपनी के पास सिर्फ पैसा आया है, कंपनी ने आगे उसको इन्वेस्ट नहीं किया है, और ये पैसे के बदले में कंपनी ने अभी तक कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी, तो हम इसको काउंट ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल असेट्स है। These financial assets are mere paper claims and involves चेंज ऑफ टाइटल ओनली। सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर वापस वही बात, कमीशन या ब्रोकरेज अगर इन फाइनेंशियल असेट्स पे हुआ तो इसको इंक्लूड करेंगे। ब्रोकर ने अगर शेयर सेल करवाने में कमीशन रिसीव किया तो इसको डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। यस प्रद्युमन, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको कंपनी के प्रॉफिट का भी शेयर मिलेगा? बिल्कुल, जो डिविडेंड मैम मिलता है ये ना, नॉमिनल फ्लो नहीं हो जाएगा? जब मिलेगा तब होगा, अभी हम्म, तो नहीं मिला। हाँ, फ्लो बिल्कुल नॉमिनल है। हमने जब शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो ये मनी फ्लो है, जब उन्होंने हमें डिविडेंड दिया तो भी ये मनी फ्लो ही है, तब ये नॉमिनल फ्लो नहीं है। ये ओके, नॉमिनल फ्लो एंड मनी फ्लो आर द सेम, आप वही पूछ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये उस टाइम नॉमिनल फ्लो है, बट आपका अगर डाउट ये है कि हम नॉमिनल फ्लो को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, ये भी क्वेश्चन है क्या आपका, या आप सिर्फ इतना पूछना चाह रहे थे कि ये नॉमिनल फ्लो है क्या? यस, यू कैन अगेन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम नॉमिनल फ्लो है तो इसे इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे? इंक्लूड डिविडेंड को करेंगे बेटा, नॉमिनल फ्लो है, डेफिनेटली वी विल बी मैम ये इंक्लूडिंग। नॉमिनल फ्लो है तो इसे इनकम में इंक्लूड करेंगे? यस, इनकम में इंक्लूड करेंगे, बट कब? जब शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला उसको डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। आपने इंक्लूड किया है ना प्रॉफिट के पार्ट में। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स आपने लिए हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग। यहाँ ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा है, जब शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी को दिया, इस फ्लो को इंक्लूड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? जब हमने उनको मनी दिया तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये कब इंक्लूड किया जाएगा? जब कंपनी ने उस मनी को आगे इन्वेस्ट किया। इज इट ओके? जब वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तभी वो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमें दे देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जब तक उसने आगे इन्वेस्ट नहीं किया होगा तब तक हमें डिविडेंड मिलना स्टार्ट नहीं होगा। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, और प्रॉफिट्स होते हैं जब कंपनी आगे फर्दर इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। एक चेन बनी हुई है, सपोज आप हैं, ठीक है, प्रद्युमन हैज इन्वेस्टेड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रही है, आगे किसी डीलर से मशीन परचेज करती है उस रुपीज से। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। आपने क्या परचेज किया? 10,000 के शेयर्स परचेज किए। ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा है, जब आपने ये शेयर्स परचेज किए, ये जो मनी फ्लो है, इस मनी फ्लो को हम अभी इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिंपल मनी आपके यहाँ से यहाँ आया है, बदले में अभी इसने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी तक इस मनी को यूज नहीं किया। जैसे ही वो इस 10,000 से डीलर के पास जाके मशीन परचेज कर लेती है, अब ये देखिए टू वे फ्लो हुआ, इधर इसने 10,000 दिया और इधर बदले में डीलर ने क्या दे दी? मशीन दे दी। अब हम इसको इंक्लूड करेंगे तो ये इनकम मेथड में नहीं आके तब एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा, ठीक है। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे तो ये इसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो इसने किया है, जिससे इसके पास बदले में मशीनरी आ गई। और जब ये आपको इस मशीन को यूज करके प्रॉफिट अर्न करेगी और आपको बदले में क्या पे करेगी? डिविडेंड। तो इस डिविडेंड को भी हम इंक्लूड करेंगे। इज इट ओके?
आगे देखिए, नेक्स्ट पार्ट आपको बोल रहे हैं किसी भी तरीके की लॉटरी इनकम या विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन क्या होती है? अचानक से हमें कोई गेन हो गया, हमने उसके बदले में कोई मेहनत नहीं की है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे प्रोड्यूसर ने एक लॉटरी टिकट परचेज कर रखा था और उसको उससे बेनिफिट मिल गया, वो बेनिफिट प्रोडक्टिव बेनिफिट नहीं है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, imputed value of services provided by owners of production unit will be included। अगर मैं बिजनेस की ओनर हूं और अपने बिजनेस के अकाउंट्स मैं ही संभाल लेती हूँ, ऐसे में मैं अपने बिजनेस को एक प्रोडक्टिव सर्विस दे रही हूँ, ये प्रोडक्टिव सर्विस की अज्यूम्ड वैल्यू हम अपने अकाउंट्स में नोट डाउन करेंगे कि अगर मैं नहीं होती तो मुझे बाहर से अकाउंटेंट हायर करना पड़ता, अकाउंटेंट हायर करना पड़ता तो अकाउंटेंट को पेमेंट देना पड़ता, तो कितना पेमेंट बनता, उस पेमेंट को मैं अपनी अज्यूम्ड इनकम ट्रीट करूंगी। हैव अ लुक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है, हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगाते हैं। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेस, interest on own capital, production for self consumption etc will be included as these are productive activities and add to the flow of goods and services। मेरी कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर है, जैसे मैंने अपने बिजनेस में खुद कुछ काम कर लिया, मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, तो इसकी हम अज्यूम्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या मेरी अज्यूम्ड सैलरी जरूर लिखेंगे, क्योंकि मेरे काम करने की वजह से वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर मैंने अपनी पुरानी सेविंग में से कोई भी पेमेंट किया है, जैसे कि इंटरेस्ट टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, इन सबको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको थ्योरी में ध्यान रखना है कि अगर हमने अपनी पुरानी इनकम में से कोई भी पेमेंट कर दिया, पास्ट की वेल्थ में से कोई भी पेमेंट कर दिया, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। 6 प्रिकॉशंस हमने पढ़े। पहला प्रिकॉशन काफी इजी है, आपको कोई भी ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करनी। फिर सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज हुई तो नहीं करोगे आप इनकम को इंक्लूड, शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स को नहीं करोगे, विंडफॉल गेन्स को नहीं करोगे। 4 पॉइंट तो ऐसे हैं जो नहीं करने, 5 पॉइंट्स ऐसे हैं। सिक्स्थ भी एक कह रहा है, पास्ट सेविंग की कोई भी पेमेंट को इंक्लूड नहीं करोगे। इंक्लूड क्या करोगे? सिर्फ एक, खुद की प्रोडक्टिव सर्विसेज अगर आपने दी है अपने बिजनेस को, उससे होने वाली जो भी अज्यूम्ड इनकम है उसको आप जरूर लेंगे। ये आपका इनकम मेथड कंप्लीट हो गया है। हमने नेशनल इनकम के 3 मेथड्स हैं, नंबर 1 और नंबर 3 नहीं किया है, नंबर 2 को कंप्लीट किया है। बुक की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दे दिए थे होमवर्क के फॉर्म में, और काफी बच्चों ने काफी क्वेश्चंस कर भी लिए हैं, सॉल्यूशंस भी मेरे पास आ गए। आज आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और है। आप देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे निकाल के बताइए। हम अभी ये क्वेश्चन करने वाले हैं, इनकम मेथड का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना एमोलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, वो इसमें गिवन है, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन पिक किया है। व्हाट वी आर सपोज टू डू, आप लोगों को इस क्वेश्चन में जीडीपी एमपी निकालना है। हमें क्या निकालना है? जीडीपी एमपी। पर इनकम मेथड की डिटेल्स है तो हमें पता है हमारा आंसर किस में आएगा? एनडीपीएफसी में आएगा। तो पहले हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैलकुलेशन आप सबको आता है, तो जल्दी से एनडीपीएफसी का कैलकुलेशन कीजिए। वी आर सपोज टू राइट डाउन लाइक दिस। स्क्रीन पे स्पेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू 3 चीजें, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्वेश्चन में ढूंढना शुरू कीजिए, क्या हमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है? बिल्कुल, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था दैट emoluments of employees is another name of compensation of employees। 4000 हमें गिवन है। सेकेंड कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस, क्वेश्चन ने हमें सब कुछ डायरेक्ट ही दे दिया है, खिचड़ी बनी हुई है, सिर्फ हमें खानी है। इनकम, मिक्स्ड इनकम इज ऑल्सो गिवन। अब जब ये दिया हुआ है तो ना तो रेंट का कोई सिग्निफिकेंस है, ना इंटरेस्ट का कोई सिग्निफिकेंस है, ये आपको केवल एक्स्ट्रा फॉर्म में गिवन है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ही रेंट और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अगर वेजेस और सैलरीज भी दे दे उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। ओके, टेल मी द वैल्यू ऑफ एनडीपीएफसी। आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, एनडीपीएफसी का वैल्यू बता दीजिए।
यस देवांशी। 13500. 13500। बिल्कुल। हमने जब ऐड किया 4000 दैट इज सीओई प्लस 3000 दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 6500 दैट इज मिक्स्ड इनकम, तो हमारे पास आया 13500। ये 13500 क्या है? ये है एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको वही एडजस्टमेंट बनाना है जैसा आपने चैप्टर 3 में बनाना सीखा था। एनडीपीएफसी, इसको आपको लेके जाना है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है जीडीपीएमपी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? जीडीपीएमपी। तो हमने एरो लगा के लिखा जीडीपीएमपी। ओके, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करूं? कौन बता रहा है? टेल मी द एडजस्टमेंट्स व्हिच वी नीड टू डू। फिर मैं आपको क्वेश्चन की वैल्यू शो कर रही हूँ, अभी आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा। यस प्रद्युमन। डेप्रिसिएशन और एनआईटी को ऐड करेंगे। बिल्कुल। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम नेट टू ग्रॉस, हम नेट से ग्रॉस पे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल बी एडिंग डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक आर सेम, वी आर मूविंग फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, तो अगेन वी विल हैव टू ऐड एनआईटी। चलिए, तो आपको क्या लिखना है? जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। करके बताइए। क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन भी गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है। 13500 में ये वैल्यूज ऐड कर दीजिए एंड टेल मी द फाइनल आंसर। Only one student? What about the others? Be quick. DEP is also given, NIT is also given. Calculate the final answer. Yes, Mosam, very good. मैम 14,000। बिल्कुल सही, 14,000 कैसे आया? हमने एनडीपीएफसी में एक तो वैल्यू ऐड कर दी डेप्रिसिएशन की, which is written as ₹400 and then NIT which is ₹100। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, give me a second, I am sharing it with you. Okay, try this one. This time you have to calculate national income. You already know the aggregate of national income, right? National income means we need to calculate NNPFC. But before that, we are going to calculate NDPFC. NDPFC, तीन चीजें आएगी: compensation of employees, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने कल भी बताया था, जो चीजें हमें फॉर्मूले में गिवन है हमें वही पुट ऑन करनी है, एक्स्ट्रा सब कुछ इग्नोर कीजिए। क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं आपको उनको इग्नोर करते हुए चलना है। तो चलिए, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ढूंढिए। क्या क्वेश्चन आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नाम से कुछ भी दे रहा है? नो, क्वेश्चन ने हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया, but it has given us wages and salaries and it has given us social security contribution. अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम मानेंगे ये बॉस ने दिया है। तो ये दो को हम प्लस करेंगे, हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा 1,20,000। बस यही लेना है। इसके बाद ढूंढिए, क्या क्वेश्चन ने आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया? डेफिनेटली नो, क्वेश्चन ने हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया। क्या क्या आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में? रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट गिवन है ये रहा। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम ये रहा। इंटरेस्ट पेड नहीं लेना है हमें, इंटरेस्ट इनकम लेनी है, ये इग्नोर करना है, 7th पॉइंट आपको। फिर प्रॉफिट, बट प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है। प्रॉफिट नहीं गिवन तो प्रॉफिट के दो पार्ट दे दिए, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जब आप इन 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास में ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा 70,000। और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम आपको नीचे गिवन है। सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम का मीनिंग है मिक्स्ड इनकम, ये दूसरा नाम है मिक्स्ड इनकम का। सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं
उनकी इनकम, दैट विल बी ट्रीटेड एज मिक्स्ड इनकम। चलिए इन सबको ऐड कर दीजिए। एनडीपीएफसी आपके पास आ गया होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या क्या वैल्यूज ली है हमने। सीओई लिया है 1,20,000, ऑपरेटिंग सरप्लस लिया है 70,000 एंड मिक्स्ड इनकम वी हैव टेकन एज 80,000। Be quick, other students also, I want the answers from all of you. Yes, Devanshi. 2,70,000. 2,70,000. Okay, now who will calculate national income? 2,70,000 तक तो आप सब पहुंच गए। ये तो आपका एनडीपीएफसी है। एनएनपीएफसी क्या आएगा? Anyone who can explain? Yes. क्या हमें क्वेश्चन में एनएफआईए दिख रहा है? नो, एनएफआईए नहीं दिख रहा है, यानी ये क्वाइट ऑब्वियस है कि आपका जो नेशनल इनकम है और डोमेस्टिक इनकम है वो दोनों सेम रहने वाले हैं। यही नेशनल इनकम, यही डोमेस्टिक इनकम, दोनों सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम भी कितना होगा? 2,70,000। बट यू हैव टू नोट इट डाउन, आपको लिखना जरूर पड़ेगा, आपको एरोस से शो करना पड़ेगा कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम। फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। फिर आप लिखेंगे एनएफआईए इन द गिवन केस इज नॉट गिवन, देयरफॉर डोमेस्टिक इनकम विल बी ट्रीटेड एज नेशनल इनकम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी भी बच्चे को लग रहा है कि मुझे इनकम मेथड में कुछ कंफ्यूजन है या कुछ डाउट्स है तो यू कैन टेल मी। अवंत बेटा, अब आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं क्या? बीच में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, अभी तो नहीं है? ओके, ही इज नॉट अनम्यूटिंग हिमसेल्फ। चलिए भाई, आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके वेरी गुड, आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और सेंड करने वाली हूँ मैं। उससे पहले आप बुक्स से क्वेश्चंस को कर लीजिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके पास, बुक्स से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आपके पास है, उनको कैलकुलेट कीजिए। उनके सॉल्यूशंस के बाद जो एडिशनल क्वेश्चंस आपको सेंड करूँ उनको सॉल्व करें और मुझे उसका फाइनल आंसर बताएं आपकी साइड से क्या आ रहा है। जब आपके करेक्ट आंसर्स आने लगेंगे, इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल। Okay, everyone, have a nice day. Enjoy yourself. Complete the theoretical portion of income method and be ready for the extra questions. See you in the next class.